Hello everyone, this is Shahbaz Javed. I'm presently working as a statistical officer in Ministry of Statistics and Program Implementation for Government of India. I was recruited through Staff Selection Commission examination. I'm an officer of 2013 batch. Previously, I've also worked as an assistant grade 3 in the accounts cadre in Food Corporation of India. I worked there for almost 2 years. I've also cracked CGL 2014, 2017. I've also cracked CHSL 2014. Uh, Basically, my purpose to make this video is there's an advertisement published by Food Corporation of India regarding recruitment of assistant grade. And since I worked as an assistant grade 3, it would help the candidates to understand what the job profile is, how to read an advertisement, and what not, what to do in the service. So regarding that, I would be discussing the advertisement and I would giving you some information regarding the post preference and what you expect in a certain job profile. So moving on to the advertisement, this is the advertisement that has been published. This is the advertisement that has been published by Food Corporation of India regarding the Category 3 recruitment. See, basically, the Category 3 recruitment is the assistant grade 3, the dealing assistants of the section. You have assistant grade 3, assistant grade 2, and assistant grade 1. After going to the post of assistant grade 1, you will get to a promotion of the manager, subsequently to the assistant general manager, deputy general manager. Like this, the posts go on. In case of junior engineers, also you're recruited as a junior engineer of the section. Then also you become the manager of the section. Then subsequently you become AGM of the engineering section. It progresses like that. So basically, since I've also worked in civil engineering section and electrical engineering section, I would be able to give you an overview of the job profile. I've also I also had a colleague who was working in the Hindi section, so I would be able to give you a detail about AG3 Hindi also. I myself was in the assistant grade 3 accounts and I know the job profile of AG3 general, technical and depot as well. Now, since this video would be watched by many students and probably I think communication, the medium of communication should be in Hindi and English both at the same time. तो मेरा नाम शहबाज जावेद है, मैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। प्रेजेंटली मैं कोलकाता पोस्टेड हूँ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस में और एफसीआई में मैंने सर्विस की है एज एन असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स कैडर में लगभग 2 साल के आसपास। और उसके बाद मैंने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ज्वाइन कर लिया था जो कि जेएसओ पोस्ट है। तो बहुत जल्दी मैं जेएसओ पोस्ट से रिगार्डिंग अगर आप लोग का कोई क्वेरी होगा तो मैं वो भी एक वीडियो डाल दूंगा। आप लोग कमेंट में वो चीज़ लिखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बताएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट के लिए दिया गया है। तो ये रिक्रूटमेंट AG3 डीलिंग असिस्टेंट्स के लिए है। तो देखिए, मैं पहले बता दूं कि AG3 अकाउंट्स में क्योंकि मैं था, बेसिकली इसमें आपको जितना भी अकाउंट्स रिलेटेड वर्क रहता है एक डिपार्टमेंट का, आपको वही देखना पड़ता है। मैं जैसे सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पोस्टेड था, तो मैं वहां का जितना बिल वगैरह जनरेट होता था, अर्नेस्ट में डिपॉजिट होता था, उसको कैश सेक्शन से कंफर्म कराना, ठीक है, उसको ला के या फिर जो भी सिविल्स का जो वर्क है वगैरह, अकाउंट से रिलेटेड बिल जनरेट करना, ठीक है। एक फैप सिस्टम है, ठीक है, फैप एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है एफसीआई का खुद का जिसमें बिलिंग सिस्टम होता है, तो वो उस पे काम करना, ठीक है। मेडिकल सेक्शन में भी मैंने काम किया है एज अ AG3 अकाउंट्स कैडर। तो मेडिकल बिल जनरेट करना, मेडिकल बिल का पेमेंट का वो रिसीट जनरेट करना, वो सब काम रहता है अकाउंट्स में। जर्नल अगर आप हैं, जर्नल पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, ठीक है। प्रमोशन वाइज अकाउंट्स कैडर का प्रमोशन बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रमोशन वाइज AG3 जर्नल का जब तक मैंने लास्ट छोड़ा था तब तक बहुत खराब था। हो सकता है अभी अकाउंट्स का खराब हो गया हो, जर्नल का अच्छा हो गया हो, तो ये वक्त वक्त पे डिपेंड करता है। उसके बाद जर्नल का पूरा ही काम ऑफिस का होता है, अकाउंट्स का भी पूरा काम ऑफिस का होता है, ठीक है। वो कहीं भी पोस्टेड होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में पोस्टेड होगा, रीजनल ऑफिस में पोस्टेड होगा, जहां भी आप एज अ पोस्टिंग लेंगे आपका काम ऑफिस में होगा, ठीक है। पोस्ट जहां फील्ड जो कि फील्ड वर्क है वो है टेक्निकल और डिपो।
टेक्निकल और डिपो में क्या होता है कि जितने सारे फूड गोडाउन्स के शेड होते हैं वहां पे डिपो कैडर के और टेक्निकल के जो क्यूसी जिसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल, वो लोग एज अ जो टेक्निकल पोस्ट लेंगे वो लोग एज अ क्यूसी पोस्टेड रहेंगे। और जो डिपो लेंगे वो एज अ डिपो कैडर में पोस्ट रहेंगे। डिपो ऑफिसेज में काम करना है आपको, ठीक है, शेड में काम करना है। अगर रेक लग गया सामान उतरेगा तो आपको रुकना है। उसमें 7-8 रात भी बच जाता है तो क्यूसी वाले को भी रहना पड़ता है, डिपो वाले को भी रहना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दिक्कत है। आप लोग फिर भी अगर लेना चाहते हैं पोस्ट, वेल एंड गुड, ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं है क्योंकि फीमेल ऐसा बिलीव करती है कि ऑफिस आवर्स में होना चाहिए। देखिए ट्रेन का कोई टाइमिंग होता नहीं है। ट्रेन जब पहुंचेगी, माल जब एंड होगा तो आपको क्वालिटी चेक के लिए रहना पड़ेगा, ठीक है। डिपो कैडर में कितना माल आ रहा है नहीं आ रहा है वो वैलिडेशन चेक के लिए डिपो कैडर को रहना पड़ता है, ठीक है। तो ऑफिस वाइज जर्नल और अकाउंट बहुत अच्छा पोस्ट है, और फील्ड वाइज टेक्निकल और डिपो है। अब जहां तक बात रहा AG3 हिंदी का, तो हिंदी सेक्शन में आप पोस्टेड रहेंगे। हेडक्वार्टर से लेटर्स आना, ये आना, उसको हिंदी में ड्राफ्ट करना, उसके बाद हिंदी पखवाड़ा, उसके बाद आपका हिंदी दिवस जब होता है, ठीक है, जो भी आपका ऑर्डर्स निकलेगा वो हिंदी सेक्शन का काम रहता है उसको हिंदी में पब्लिश करने के लिए, उसको सर्कुलेट करने के लिए ऑफिस में, जो भी सर्कुलर हेडक्वार्टर से हो या आपके रीजनल ऑफिस में अगर निकलता है। उसके अलावा स्टेनो ग्रेड 2 जो है, स्टेनो ग्रेड 2 हालांकि ज्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन स्टेनो ग्रेड 2 मेरे ख्याल से आपका GM के साथ वो लोग रहते हैं जो जनरल मैनेजर रहते हैं। जोनल ऑफिस में जनरल मैनेजर सब बैठते हैं और रीजनल ऑफिस में एक जनरल मैनेजर होते हैं जो एक्चुअली रीजनल ऑफिस को हेड करते हैं। तो स्टेनो उन लोगों के पास बेसिकली रहता है ताकि वो जाए कोई लेटर वेटर ड्राफ्ट करना है तो वो स्टेनोग्राफी बेसिकली होती है, एक शॉर्ट हैंड होता है, वो एक सिंबल राइटिंग होती है, ठीक है। तो वो कुछ भी आपको अगर लेटर ड्राफ्ट करना है वो आपको बोल देंगे कि ये लिखो लेटर में, तो आपको शॉर्ट में उसको लिखना होता है, वापस आके उसको कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करना होता है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इसमें आपका पोस्टिंग होगा जो जितने सारे इलेक्ट्रिकल वर्क्स होंगे शेड्स में, डिपोज में, ठीक है, तो वो इसी सेक्शन से, आरओ के सेक्शन से वो पास होके जाता है। और सिविल का भी वही है, जो भी सिविल वर्क्स होगा डिपो में, आरओ में, शेड में, कहीं पर भी कोई भी सिविल वर्क्स होगा तो ये जूनियर इंजीनियर्स वो एस्टिमेट बनाते हैं। DSR एक रेट बुक होती है दिल्ली की, उससे एस्टिमेट देख के वो उस काम में कितना पैसा लगेगा, उसके बाद उसको पब्लिक पोर्टल में डालते हैं जो PPP पोर्टल होता है, ठीक है। वहां से बिडिंग होती है, फाइनेंशियल बिड होता है, टेक्निकल बिड होता है। फाइनेंशियल बिड होता है देखने का AGM लोगों का, टेक्निकल बिड भी उसके बाद उसको कंफर्म करना होता है। ये सब टेक्निकल है। वर्क प्रोफाइल, अगर आपको चाहते हैं आप वर्क प्रोफाइल के ऊपर ही एक पर्पसली पूरा वीडियो बने तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। अब आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट में। ये तो सब जोन्स के वैकेंसी के हिसाब से दिया हुआ है। ये नॉर्थ जोन हो गया, ये साउथ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, ठीक है, वेस्ट जोन हो गया और नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया, ये 5 जोन है। अब इसके अलावा आपको रिजर्वेशन वगैरह लिखा हुआ है, जो एब्रिविएशन है, जेई जूनियर इंजीनियर्स के लिए है, ये असिस्टेंट ग्रेड, AG असिस्टेंट ग्रेड, UR मतलब अनरिजर्व, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, आपको वो दिया हुआ है, रिजर्वेशन कितना है वो सब वगैरह लिखा हुआ है उसमें। रिजर्वेशन का ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसा रिजर्वेशन दिया हुआ है, ये उसका चार्ट होता है, ठीक है। अगर कोई दिव्यांग कैंडिडेट ये देखेंगे पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि अगर वो ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड है या फिर विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उनका रिजर्वेशन उस पोस्ट में है या नहीं वो देखने के लिए होता है, ठीक है। और 2016 के डिसेबिलिटी एक्ट के तहत बहुत सारी डिजीजेज को परमानेंट डिसेबिलिटी माना गया है, तो उस हिसाब से उसका भी रिजर्वेशन है। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन जो है एसेंशियल है, और इस डेट को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 1/8/2022। 1/8/2022 का मतलब हो गया कि 1/8/2022 से पहले आपका थ्रेशोल्ड जो एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आप उस एग्जाम में पास होने चाहिए, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है। जूनियर इंजीनियर के लिए वही होता है, डिप्लोमा होगा, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल की। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में भी केस में सेम है, इलेक्ट्रिकल की डिग्री या मैकेनिकल की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, और या फिर डिप्लोमा, दोनों में से किसी एक में, और 1 साल का एक्सपीरियंस। स्टेनो में आपको ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन में आपका हो ग्रेजुएट डिग्री। और ये जो लिखा है 40 वर्ड्स पर मिनट और 80 वर्ड्स पर मिनट, ये क्या है मैं बता दूं। 80 वर्ड्स पर मिनट वो हो गया आपका शॉर्ट हैंड का स्पीड, और 40 वर्ड पर मिनट हो गया जब वो शॉर्ट हैंड के स्पीड को देख के आप टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। इसके अलावा AG3 जर्नल, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए ये यहाँ लिखने का मतलब ही है कि हो सकता है बाद में FCI आपसे एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट ले कंप्यूटर का, ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है।
AG3 अकाउंट्स में भी बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, और कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, मतलब 40% भी अगर आपके ग्रेजुएशन में है आप अपियर कर सकते हो, ठीक है। और कंप्यूटर इसमें भी मैंडेटरी रखा है। टेक्निकल में देखिए क्या क्या दे दिया है, बीएससी इन एग्रीकल्चर वाले डायरेक्टली हैं, या फिर बीएससी आपका किसी भी स्ट्रीम में हो, उसमें स्ट्रीम में क्या है, या तो बॉटनी आप होने चाहिए बीएससी में, या जूलॉजी होने चाहिए, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, आप सबके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद और एक है, अगर आप बीटेक हो, ठीक है, तो या बैचलर इन इंजीनियरिंग हो, इन फूड साइंस या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन, कुछ भी, ठीक है। और इसमें भी देखिए प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि सब काम अब कंप्यूटर पे होता है, तो आपको प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए। AG3 डिपो में भी वही है, ग्रेजुएट इन एनी डिग्री, मतलब ग्रेजुएट आपको कोई भी डिग्री में होने से, किसी भी डिसिप्लिन में होने से होगा, और आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और AG3 हिंदी जो है, जो कि हिंदी सेक्शन में जो असिस्टेंट ग्रेड पोस्टेड होते हैं, उसमें क्या है कि डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, कि डिग्री आपके पास मेन सब्जेक्ट में तभी होगी जब आपके पास ग्रेजुएशन हिंदी में होगी, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश भी चाहिए आपको, आपको एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स भी चाहिए ट्रांसलेशन के लिए, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, ठीक है। और 1 साल का होना चाहिए वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, ठीक है। और उसके बाद आपकी हिंदी टाइपिंग भी चेक होगी, हिंदी टाइपिंग की स्पीड भी आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ये आपको आना चाहिए। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अप्लाई करने से पहले आप सिर्फ एक जोन और एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप मल्टीपल जोन और मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर मुझे अप्लाई करना है नॉर्थ जोन में, तो मैं नॉर्थ जोन पहले सेलेक्ट करूंगा, और नॉर्थ जोन में आप किस में मुझे अप्लाई करना है, मानिए मुझे जर्नल में अप्लाई करना है, तो AG3 जर्नल में मैं अप्लाई कर सकता हूं, और कोई पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन भरेंगे, तो सबसे लेटेस्ट वाला एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट होगा, बाकी सब एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, आपने फीस भी भरा है तो वो भी नॉन रिफंडेबल है, फॉरफिट हो जाएगा। ये इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन पोस्ट ऑफ द पोस्ट कोड विद इन द जोन, ठीक है। और एक बात है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो FCI रिजर्व्स द राइट टू डिस्क्वालीफाई यू एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिलैक्सेशन में आ जाते हैं, रिलैक्सेशन आप लोगों को पता ही होगा, SC ST 5 इयर्स, OBC 3 इयर्स, ठीक है। अपर एज लिमिट, अगर FCI का कोई कैंडिडेट है, कोई ग्रुप डी के कैंडिडेट FCI के होंगे, क्लास 4 जिसको बोलते हैं, तो वो लोगों को 50 इयर्स तक एक्सटेंशन है, मतलब अगर कोई 50 साल के अंदर है तो वो एग्जाम दे सकता है, एज का उनके पास लिमिटेशन नहीं होगा। और पब्लिक विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है PWBD, इसमें आपको 10 साल दिया गया है, और अगर आप डिसेबिलिटी है विद बेंचमार्क विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो 15 इयर्स मिलेगा अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, और 13 इयर्स मिलेगा अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा OBC का ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, OBC अगर कोई अप्लाई करेगा या EWS अप्लाई करेगा, तो आप लोग ये डेट्स को ध्यान में रखिएगा। OBC के लिए डेट है 1/4/22 के बाद का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, वो OBC ऑफिस जाने से अपना पुराना सर्टिफिकेट देने से वो लोग कर देते हैं। और EWS का भी ये डेट्स ध्यान रखिएगा, 1/4/22 से 31/3/23 के बीच का ही होना चाहिए। यानी कि अभी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं EWS में, आप लोग काइंडली इसको इशू करवा लीजिए। एज रिलैक्सेशन ये विमेन के केस में है कि अगर कोई विधवा है, ठीक है, या डिवोर्सी है, तलाकशुदा है, या फिर विमेन जुडिशियली सेपरेटेड है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए 35, 38, 40 इयर्स रेस्पेक्टिवली रिजर्वेशन है, अगर वो अनरिजर्व OBC SC ST से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया रिजर्वेशन का सब बात। एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन आप लोग देख लीजिएगा, एक्स सर्विसमैन जो हिसाब से होते हैं उन लोगों को खुद ही एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना आता है, उसमें बताना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। और अब नीचे आ जाते हैं, हाँ ये आपका पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न में आपका क्या है, देखिए पैटर्न में आपका फेज 1 और फेज 2 रखा हुआ है, ठीक है। फेज 1 में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, वो सब मिला के आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर रहेगा, 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। बहुत बढ़िया। फेज 1 का मार्क्स काउंट नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, द मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 1 विल नॉट बी रेकर्ड इन फाइनल मेरिट रैंकिंग। यानी कि फेज 2 में जो आप नंबर लाएंगे सिर्फ वही काउंट होगा आपका अपॉइंटमेंट होने के लिए, मेरिट लिस्ट बनने के लिए। अब फेज 2 में क्या है, फेज 2 भी ऑनलाइन होगा, फेज 1 भी ऑनलाइन होगा। फेज 2 में आप देख लीजिए, अगर कोई इंजीनियरिंग है तो पेपर 1 एक्चुअली सबके लिए कॉमन होता है, ये बात आप समझ जाइए, ठीक है।
पेपर टू उसी का होगा अगर कोई स्पेसिफिक कैडर को आप बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप अकाउंट्स को बिलोंग कर रहे हैं तो आपको एक अकाउंट्स का पेपर देना होगा। अगर आप इंजीनियरिंग से बिलोंग कर रहे हैं आपको इंजीनियरिंग का पेपर देना होगा। अगर आप हिंदी से बिलोंग कर रहे हैं एक हिंदी का पेपर होगा। अगर आप स्टेनो से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी वो टेस्ट होगी। ठीक है। अगर आप टेक्निकल से बिलोंग कर रहे हैं तो टेक्निकल का एक अलग पेपर होगा। तो ये चीज आपको जानना होगा। ये पेपर वर्क सब में कॉमन है। देख लीजिए उसी हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है AG3 जर्नल में सिर्फ पेपर वन होगा, लेकिन अकाउंट्स में देखिए दो पेपर है, उसका अपना एक पेपर होगा। ठीक है। और एक ही दिन होगा, देख लीजिए लिखा हुआ है सिंगल सीटिंग ओनली, यानी कि एक हाफ में पेपर वन हुआ, सेकंड हाफ में पेपर टू होगा। टेक्निकल में भी देख लीजिए दो पेपर है, डिपो में एक ही पेपर है, AG3 का भी दो पेपर है। ठीक है। उसके बाद अब आप देख लीजिए यहाँ तो लिख ही दिया है पेपर वन इज कॉमन फॉर ऑल पोस्ट कोड्स, और पेपर टू जो है पोस्ट स्पेसिफिक होगा। पोस्ट स्पेसिफिक का मतलब जिस कैडर में आप जाना चाहें, इंजीनियरिंग हो, अकाउंट्स हो, हिंदी हो, ठीक है, टेक्निकल हो। तो पेपर वन जो है फेज, ये देखिए ये फेज टू का बात हो रहा है। यह देखिए ये पेपर वन का फेज टू के पेपर वन का बात हो रहा है। ठीक है। इसमें आपका इंट्रोड्यूस हो गया है 75, 45, 120 क्वेश्चन और 120 नंबर। ठीक है। और 90 मिनट्स हो गया, 1.5 घंटे यहाँ पे कर दिए गए हैं। और पेपर टू जो है इसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। अगर कोई सिविल से बिलोंग कर रहा है सिविल का, अगर कोई कॉमर्स से बिलोंग कर रहा है कॉमर्स का, अगर कोई एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी से बिलोंग कर रहा है तो उसका, अगर कोई हिंदी से बिलोंग कर रहा है तो हिंदी लिटरेचर से वो क्वेश्चन होगा। ठीक है। उसके बाद ये उसका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस आप लोग एडवर्टाइजमेंट से देख लीजिएगा। जो सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ वही पढ़ना है, प्लीज सिलेबस से बाहर नहीं पढ़िएगा। ठीक है। और प्लीज क्वेश्चन नहीं करिएगा इससे पढ़ ले उससे पढ़ ले, बिल्कुल नहीं। जो सिलेबस दिया हुआ है स्पेसिफिक क्वेश्चन उसी से आएगा। उसके बाद पेपर थ्री भी एक है, पेपर थ्री है आपका MS एक्सेल पावर पॉइंट, इससे रिगार्डिंग बहुत बढ़िया पेपर थ्री भी रखा गया है। तो आपका फेज टू में पेपर वन पेपर टू तो सबका हो गया। जो लोग पेपर वन पेपर टू करेंगे मेरे ख्याल से उनका फेज थ्री होगा। देख लीजिए मेरिट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉर पोस्ट कोड डी एंड जी विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस मार्क्स सिक्योर्ड इन पेपर वन ऑफ फेज टू। यानी कि डी और जी कौन हो गया, डी हो गया जर्नल AG3 जर्नल, और जी हो गया आपका डिपो। मेरे ख्याल से यही है, आप ऊपर जाके उसको देख सकते हैं जो पोस्ट जहां पर था। ये देखिए डी हो गया, ये देखिए डी हो गया जर्नल, और देखिए जी हो गया डिपो। बाकी सबके लिए दूसरा पेपर है, तो मतलब बाकी सबके लिए दूसरा पेपर हो गया। इसका मतलब ये है कि पोस्ट कोड इसके लिए जो है ये कंबाइंड मार्क्स डिसाइड होगा फेज टू का। ठीक है। पेपर वन पेपर टू मिला के। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोस्ट कोड सी विल नीड टू टेक पेपर थ्री, यानी कि स्टेनो वाले लोग को एक पेपर थ्री लेना पड़ेगा। मतलब पेपर थ्री आप लोग के लिए नहीं है, जो लोग स्टेनो अप्लाई करेंगे सिर्फ उनके लिए है। ठीक है। और स्टेनो थ्री का जो पेपर डिक्लेयर होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर थ्री। ठीक है। पेपर थ्री के बेसिस पे इनका मेरिट लिस्ट बनेगा। और तो फिलहाल कुछ नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट रहेगा इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, या दोनों में से आपको कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए। जो मैंने इसलिए जो आप जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म का वीडियो जो डाला है आप उसमें देखोगे लास्ट में जब लैंग्वेज पूछा है तो कोई भी एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, या इंग्लिश या हिंदी। ठीक है। और तीनों आनी चाहिए, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा स्किल टेस्ट तो फिलहाल सिर्फ स्टेनो के लिए है, आप लोगों के लिए जो लिखा हुआ नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट जहां पर भी एप्लीकेबल होगा कैंडिडेट्स को 3 टाइम्स बुलाया जाएगा। ठीक है। तो आप वैकेंसी जो है उसके 3 टाइम्स कर दीजिए, उतने ही कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचेंगे। और ये तो क्लियर हो गया है कौन जोन में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कॉल लेटर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था कि आपका 23 में एग्जाम होगा। ठीक है। 23 में स्टार्टिंग में वो लिखा हुआ है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जब आप लोग एग्जाम में जाएंगे मैं उसमें एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को क्या चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन, आप इंडिया के सिटीजन है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, यही उसके कहने का मतलब है यहाँ पे। और
फिलहाल तो और कुछ इसमें ऐसा है नहीं, ये सब लिस्ट ऑफ सेंटर्स का है। केसेस अगर होंगे मार्क्स के तो किस तरह से सॉर्ट आउट होगा ये उसके बारे में दिया हुआ है, अभी आप लोगों को वो जानने की जरूरत है। अब आप लोग सिर्फ एग्जाम दीजिए, एग्जाम में अपना मार्क्स सिक्योर करने का कोशिश करिए। सब कुछ आपका 1/8/2022 से पहले का होना चाहिए, कुछ भी उसके बाद रहेगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये फीस है 500 रुपीज फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट, SC ST एंड women आर नॉट टू पे एनी फीस, ठीक है। उसके अलावा स्कोर्स पे कैसे अराइव करना है, ये सब बात की बात है, अभी वो सब नहीं चाहिए। ये आपको दे दिया है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या क्या उसका गाइडलाइन है। ये गाइडलाइन के हिसाब से मैंने एक वीडियो डाल दिया कि फॉर्म पूरा स्टार्टिंग से एंड तक कैसे भरना है, वो वीडियो आप देख लीजिए, वो भी मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है। वो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये डिक्लेरेशन आपको लिखना, आपके पास 4 चीज होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। आपके पास आपका फोटो होना चाहिए, आपके पास स्कैन किया हुआ फोटो होना चाहिए जेपेग फॉर्मेट में, आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए जेपेग फॉर्मेट में, आपके पास डिक्लेरेशन होना चाहिए जेपेग फॉर्मेट में, और आपके पास आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए जेपेग फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका वो देखा जाएगा। मतलब ये चारों चीज आपको चाहिए, ठीक है। और मैं आपको अभी वो ओपन करके दिखा दूंगा कि आपके पास वो 4 चीज कैसे चाहिए। एप्लीकेशन फी तो ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, SC ST PWD या विमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फी, आपको देने की जरूरत नहीं है। फोटोग्राफ वगैरह का मैं अभी ये यहाँ पे वो दिया हुआ है कि कैसे आपका होना चाहिए। सिग्नेचर का डायमेंशन 140/60, ठीक है। फोटो का डायमेंशन 200/230, 20 से 50 KB, सिग्नेचर का 10 से 20 KB, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 240/240, 20 से 50 KB, ठीक है। और डिक्लेरेशन जो है, ये डिक्लेरेशन जो ऊपर में सेंटेंस लिखा हुआ था, वो आपका इस तरह होना चाहिए, एक ब्लैंक पेपर में इस तरह आप डिक्लेरेशन लिखेंगे, वो जो पैराग्राफ है वहां पे। ये डिक्लेरेशन लिख के इसको स्कैन करके व्हाइट पेज में ब्लैक पेन से डिक्लेरेशन होना चाहिए, ठीक है। और फिलहाल बाकी जो फॉर्म कैसे भरना, ये डेट देख लीजिए। डेट्स आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए। 5 अक्टूबर तक काइंडली वेट नहीं करिएगा लास्ट डेट का, 2-3 अक्टूबर तक भर के हटाइएगा या फिर अभी भर दीजिए। वीडियो तो मैंने डाल दिया, देख के भर लीजिए। टेंटेटिव इन द मंथ ऑफ जनवरी, ये टेंटेटिव डेट दिया जाता है एग्जाम का, डेट बाद में बताया जाएगा। साइट पे रेगुलर विजिट करते रहिए, मैं वीडियो भी डाल दूंगा। और ये फॉर्मेट है, इसमें ओबीसी वाले को अपना ओबीसी करवा लीजिए आप लोग जाके रिन्यू ओबीसी ऑफिस से, और जो लोग EWS है वो लोग भी जाके काइंडली करवा लीजिए। ये उन्हीं का सब फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अभी और रिक्वायर्ड नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये दिखा दूं कि ये फोटो है, फोटो में सिर्फ ऐसे फोटो लिख के रखिएगा और कुछ मत लिखिएगा, वरना फोटो अपलोड नहीं लेगा। सिग्नेचर में सिर्फ सिग्नेचर लिख के रखिएगा। LTI में ऐसे व्हाइट पेपर में आपका एक लेफ्ट LTI होना चाहिए, ठीक है। थंब पैड पे लेके उसको प्रेस करिएगा। और ये रहा आपका डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन भी आपको इसी तरह से रखना है। ये यहाँ पे रहा आपका डिक्लेरेशन, ठीक है। ये डिक्लेरेशन रहा। वो मैं लिंक में आपको उसके साइज वगैरह, लिंक में मैं एडवर्टाइजमेंट डाल देता हूँ, क्या गाइडलाइंस है वो भी डाल देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको भरिए, फॉर्म फिलअप करिए। और कोई भी अगर क्वेरी हो कमेंट में डालिए। वीडियो कैसा लगा बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का भी वीडियो में डालने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग काइंडली बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और बस यही वीडियो था। थैंक यू सो मच। वीडियो देख लीजिए और आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए जल्द से जल्द। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।